جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ بدلہ چکانے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو کسی شخص سے بدلہ لیتا ہے، کسی شخص نے کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کا جو بدلہ لیتا ہے تو یہ بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں صلہ رحمی کسے کہتے ہیں کہ جب کسی شخص سے رشتہ داری توڑی بھی جاتی ہے تو وہ شخص ظلم کرنے والے سے اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے، اس سے صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حقیقت میں صلہ رحمی اسے کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی چاہے اس کے رزق میں برکت ہو اور فراخی ہو اور عمر دراز ہو، عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے درازی عمر عطا فرما، میری لمبی عمر عطا فرما۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم خوشخبری سنا دی ہے کہ جو مسلمان بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کے لیے کیا کرے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، دو حدیث پاک میں نے پیش کر دی جو بخاری شریف کی ہے۔ اب صلہ رحمی کی فضیلت تو آپ نے سن لی، صلہ رحمی کہتے کسے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم مسلمانوں سے اکثر بیشتر باہر دوستوں میں بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں اور پڑوسیوں میں بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہی ماں باپ سے ہمارا رشتہ کیسا ہے، والدین سے ہمارا رشتہ کیسا ہے، بھائی بہنوں سے ہمارا رشتہ کیسا ہے، رشتہ داروں سے کیسا رشتہ ہے، یہ ہمیں خود اپنے آپ میں چیک کر لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے دوستوں میں، پڑوسیوں میں بڑے ہی خوش اخلاق اور ملنساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ واقعی بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا ملنسار ہے، لیکن حقیقت میں کسی شخص کے اخلاق کا پتہ چلانا ہو تو اس کے گھر والے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو باہر والوں میں خوش اخلاقی کا، ملنساری کا، صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے والدین، رشتہ داروں سے ہمارا سلوک کیسا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان سے کیسے صلہ رحمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا ان سے قطع تعلق کر رہے ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھ پر رحم کیا جائے، لوگ مجھ پر رحم کھائیں، مجھ سے صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے، تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کا معاملہ کیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے، تو ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہمیں دوسرے لوگوں پر رحم کرنا ہے، دوسرے لوگوں سے صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صلہ رحمی کی تعریف آپ نے سن لی، صلہ رحمی کی فضیلت آپ نے سن لی۔ اب دیکھیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک قائم رکھنا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا ہے،
तो रिश्तेदार तो बहुत हैं, नाना भी रिश्तेदार है, नानी भी रिश्तेदार है, दादा भी रिश्तेदार है, दादी भी रिश्तेदार है, बेशुमार रिश्तेदार है। अब शुरू कहाँ से किया जाए, शुरू कहाँ से किया जाए, सिला रहमी का मामला कहाँ से शुरू किया जाए, किस रिश्तेदार से सिला रहमी का आगाज किया जाए? तो उलमा इरशाद फरमाते हैं रिश्ते तो हजारों सैकड़ों हैं, लेकिन हमारा सबसे करीबी अगर कोई रिश्ता होता है तो वो वालिदैन के साथ होता है, माँ बाप के साथ होता है। उन्हीं की वजह से हम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो सिला रहमी के अगर कोई अव्वलीन मुस्तहक है तो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? एक हदीस बाद में आपने सुन चुकी है, रमज़ानुल मुबारक की जो हदीस मैंने पेश की थी। अल्लाह के रसूल मिंबर पर चढ़ रहे हैं और तीनों सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आमीन कहा, तो उसमें से एक सीढ़ी पर रखते हुए आपने आमीन फरमाया। उसकी वजह ये बयान फरमाई, जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे, सय्यदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बद्दुआ फरमाई, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो बूढ़े माँ बाप को पाए या दोनों में से एक को पाए लेकिन उनकी खिदमत ना करके अपनी मग़फ़िरत का सामान ना करे। तो सय्यदुल अंबिया ने सय्यदुल मलाइका की बद्दुआ पर आमीन फरमाया है। तो पता क्या चला? उलमा इरशाद फरमाते हैं रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक रखना है, पड़ोसियों से हुस्न सुलूक रखना है, हर एक से हुस्न सुलूक रखना है, सबसे रिश्ता कायम रखना है। लेकिन सबसे पहला हक वालिदैन का होता है, उनसे अदब का मुजाहरा करना है, उनसे सिला रहमी का मुजाहरा करना है, उनसे मिलनसारी का मुजाहरा करना है, उनसे खुश अखलाकी से पेश आना है। ये सबसे पहला हमारा हक होता है। अगर दादा भी खुश है, दादी भी खुश है, नाना भी खुश है, नवासा भी खुश है, पोता भी खुश है, सास भी खुश है, ससुरा भी खुश है, बेशुमार लोग खुश है, लेकिन माँ बाप नाराज है, जहन्नुम का ईंधन बनना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई बूढ़े माँ बाप को पाए या दोनों में से कोई एक है, माँ जिंदा है या बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करके, उनका अदब करके, उनकी फरमाबरदारी करके अगर वो जन्नत का सामान नहीं करता तो वह हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। ये किसने बद्दुआ फरमाई? जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार है। और आमीन किसने फरमाई? जो सय्यदुल अंबिया हैं, अंबिया के सरदार हैं। ये तो वालिदैन के ताल्लुक से एक नुक्ता मैंने पेश किया जो हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी पोशीदा है। तो उसी हदीस के तौर पर मैंने तबसरा किया कि हर कोई खुश है दुनिया में हमसे, लेकिन माँ बाप नाराज है, माँ बाप तकलीफ में है, तो कोई नेकी काम आने वाली नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन उलमा यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं आज तो मामला ये हो गया है कि अगर कोई नसीहत भी की जाती है, माँ कोई नसीहत करती है, बाप कोई नसीहत करता है, तो बजाय उनकी नसीहत को कबूल करने के वो तेज नजरों से माँ को देखते हैं, तेज नजरों से बाप को देखते हैं। लेकिन उलमा क्या इरशाद फरमाते हैं, एक ही कौल काफी है नाफरमान औलाद के लिए फरमाबरदार बनने के लिए। उलमा इरशाद फरमाते हैं अगर औलाद ने माँ या बाप दोनों में से किसी को भी एक दफे तेज नजरों से घूर के देखा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे अमाल को बर्बाद कर देता है। ये जज्जत उलमा इरशाद फरमाते हैं। अब अंदाजा लगाओ, एक तेज नजर से माँ बाप को घूरने वालों के अमाल बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें तकलीफ देने वालों का हाल क्या होगा, उनकी गुस्ताखी करने वालों का क्या हाल होगा, उनकी बेअदबी करने वालों का क्या हाल होगा, उनकी नाफरमानी करने वालों का क्या होगा, उन्हें बुरा भला कहने वालों का क्या होगा। अगर माँ बाप से गुस्ताखी करोगे, तेज नजरों से एक नजर से घूर के देखोगे, सारे अमाल बर्बाद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिहाजा माँ बाप सबसे पहला हक रखते हैं सिला रहमी के ताल्लुक से। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी ये बात कहते अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि रिश्तेदारों को जो तोड़ता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, इबादत बहुत है, नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, तिलावत कुरान भी है, जिक्र अस्कार भी है, सब काम है, ढेरों पहाड़ों बराबर नेकियां है। लेकिन जो शख्स इतनी इबादतें नेकियां रखने के बावजूद रिश्तों को तोड़ता है, सिला रहमी का मुजाहरा नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐसे शख्स को अल्लाह जन्नत तो क्या है
जन्नत की खुशबू भी नहीं अता फरमाएगा। कितनी बड़ी वईद है। आज लोग नमाजों पर जाम कर रहे हैं, रोज़ों पर गुरूर कर रहे हैं, तिलावत कुरान पर गुरूर कर रहे हैं, जिक्र अस्कार पर गुरूर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सब है, लेकिन अगर रिश्तेदारियों का अगर वो शख्स तोड़ता है उसे जन्नत का ख्वाब तो छोड़ो, उसे जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, लिहाजा हमें इस मुख्तसर ज़िंदगी में इबादत और रियाजत के साथ साथ सिला रहीमी का मुजाहरा करना है, टूटे रिश्तों को जोड़ना है। जो रिश्ता हमसे तोड़ता है उससे हमें रिश्ता जोड़ना है, और बिलखुसूस वालिदैन से सिला रहीमी का मुजाहरा करना है, हुस्न सुलूक का मुजाहरा करना है। आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस मैं उन तमाम सामीन और नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूँ जो मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं या मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान अदवी को आप सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपके इल्म दीन में अगर मेरी वीडियोस के जरिए कुछ इजाफा हो रहा है तो आप इन वीडियोस को सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती आरा का इजहार करना न भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, और माह रमज़ानुल मुबारक में इबादत के साथ साथ रियाजत के साथ साथ रोज़ा तरावी के साथ साथ रिश्तेदारों को कायम रखने की तौफीक अता फरमाए, टूटे रिश्तों को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए और हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए, सिला रहमी का मुजाहरा करने की तौफीक अता फरमाए। जितने मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जितने मुसलमान बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह तबारक व तआला रहम करम की बारिश फरमाए, और गज़ा में जितने अहले ईमान शहीद हो रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। और मरने से पहले मुझे और आप तमाम सामीन नाज़रीन को एक मरतबे रमज़ानुल मुबारक का एक महीना हमें हरम शरीफ में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद नबवी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और ख़ातिमा फरमाए तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।